Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. ये AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि शीतकालीन सत्र यूं ही निकल जाए, अहम मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर चर्चा ना हो। वंदे मातरम का एक झूठा मुद्दा लाया गया और उस पर 10 घंटे तक बहस करवाई गई। नतीजा कुछ नहीं निकला और कुछ निकलना भी नहीं था। लेकिन राहुल गांधी बार बार सदन में खड़े हो जाते थे। राहुल गांधी कोई आम इंसान तो है नहीं। राहुल गांधी जो है एलओपी हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और दिल्ली के हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं कि जो डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर हो सके तो दिल्ली को छोड़ दीजिए। दिल्ली में आपातकाल लग चुका है, दिल्ली में इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर रहेंगे तो आपको दमा की शिकायत हो सकती है, आपको जो है फेफड़े में कैंसर हो सकता है, मतलब तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा डॉक्टरों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था। राहुल गांधी 2 बार खड़े हो गए और राहुल गांधी को जवाब देने के लिए जो है जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको खड़ा होना पड़ा। राहुल गांधी का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो असल जवाब था उसका जवाब वे भी नहीं दे पाए। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं? For letting me raise this issue of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not an ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least one. You are rightly said, but during 0 hour, let me finish. I think so there is a time constraint. If you want to bring some resolution under any appropriate law, so Speaker will allow for a debate for the, I think, let me just kindly make it brief. Let me conclude. Please. So I think this is an issue where, everybody says government, opposition, fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years
Maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. इसके साथ ही जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, जिनका नाम भूपेंद्र यादव बताया जाता है, पता नहीं आप इनको पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, ये सदन के पटल पर खुलेआम झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। झूठ इतना बोल रहे थे, लग रहा था कि आज नरेंद्र मोदी को भी ये पीछे छोड़ देंगे। इनका झूठ पकड़ा गया है, सुनिए इनको पहले। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम पूछा है। प्रमोद जी, 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा मंत्री जी ने क्या कहा, दिल्ली का जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 400 के 50 के पार कभी गया ही नहीं। अब आप बताइए, खुलेआम ये आदमी मंत्री होकर झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है, और वो भी कहां, राज्यसभा में, जो सबसे बड़ा सदन है, सबसे ऊपर का सदन है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसमें यह आदमी खुलेआम झूठ पर झूठ परोस रहा था। अब आप बताइए कि इतना झूठ ये लोग जब राज्यसभा में बोल रहे हैं, तो ये लोग रैलियों में, भाषणों में ना जाने क्या क्या बोलते होंगे। और अब सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, सब कुछ पकड़ में आ गया है। दरअसल दोस्तों, सरकार ये कहना चाहती है कि देखिए, जो इंटरनेशनल डेटा है, इंटरनेशनल जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को ये सरकार नहीं मानेगी। और वहीं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो तो सबसे ऊपर हैं, नरेंद्र मोदी से भी ऊपर हैं। थर्मामीटर से AQI चेक कर लेती हैं। थर्मामीटर किस काम में आता है? कहती हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी मेजरमेंट से आप जो है AQI माप सकते हैं। फिर कहती हैं AQI, IQ, AIQ, मतलब ना जाने क्या क्या, ऐसे मुंह करके। समझ में नहीं आ रहा है कि किस महिला को, किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो खुलेआम में कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले EVM हैक किया करती थी, भाजपा ने EVM हैक कर लिया है, तो दिक्कत हो रही, दर्द हो रहा है। और पता नहीं क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, लीडरशिप जो है, वो इनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाए हुए हैं। अब पता नहीं इनके जैसा कोई महान आत्मा दिल्ली में है या नहीं है। दिल्ली में आपातकाल एक तरीके से लग चुका है, सांसों का आपातकाल, सांसों की इमरजेंसी, कि आप लोग दिल्ली छोड़ दीजिए। कायदे से तो ये चाहिए दोस्तों कि दिल्ली जो है, दिल्ली की हवा एकदम साफ होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली की हवा साफ नहीं है। और अब इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं अजीत भारती का ट्वीट। अजीत भारती कहते हैं कि अरे निर्लज्ज, AQI का 50 से अधिक होना ही हानिकारक है। 100 के बाद मध्यम हानिकारक, 200 के बाद खराब, 300 के बाद बहुत खराब और 400 के बाद भयावह माना जाता है। अजीत भारती जो हैं ये राइट विंग के हैं, RSS खेमे के हैं, और ये खुलेआम भूपेंद्र यादव को निर्लज्ज बता रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने क्या कहा, इस साल जनवरी से नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर 187 हुआ। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 400 नहीं हुआ है। तो आप बताइए अब किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। आप दिल्ली रहते हो, पटना रहते हो, लखनऊ रहते हो, लगभग सभी शहरों का एक जैसा हाल है। पटना में क्या ठीक है वायु प्रदूषण? लखनऊ में क्या ठीक है? इलाहाबाद में क्या ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। लेकिन आप जरा सोचिए और अपने दिमाग को जरा दौड़ाइए
चलाइए, मन को दौड़ाइए। कभी आपने देखा लखनऊ में, पटना में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये लोग कभी टैंकरों से पानी का छिड़काव कर रहे थे? करते हुए कभी आपको दिखाई दिए? मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कभी लोगों ने किया होगा। अगर मान लीजिए 2-4 टैंकर चला भी दिए होंगे, इसके अलावा इन्होंने क्या किया जिससे वायु प्रदूषण को रोका जाए? अब तो आपके पास हरियाणा भी है, अब आपके पास दिल्ली भी है, आपके पास लगभग सभी राज्य हैं, सभी राज्यों पर आप कब्जा है। इसके बावजूद भी लगातार वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है और आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। आप एकदम मस्त हैं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। दिल्ली की जनता है, पटना की जनता है, लखनऊ की जनता, इलाहाबाद जनता है, मर रही, मरने तो कोई फर्क नहीं है। तो सोचिए। खैर, ये तो बड़ा छोटा मुद्दा है। आप इंडिगो का मामला देख लीजिए, अब तो बवाल मचा हुआ। कहा जा रहा है चिंता मत कीजिए, मोदी जी के जो मित्र हैं, परम मित्र हैं, सेठ साहब, बहुत जल्द ही इंडिगो को ओवरटेक करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही 2 लाख करोड़ रेट है इंडिगो का और बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेंगे, मतलब खरीद लेंगे। अभी एनडीटीवी खरीदा ही था, उन्हीं का कब्जा होने जा रहा है, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बामसेफ न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की ही खबर मिलती है। धन्यवाद।